In business laws, we were in chapter 6, chapter the Companies Act 2013. So let us continue from where we have left. On the basis of members, we were defining the companies. So we have, on the basis of members, we have three types of companies. In the books it is described as three, but as I told you that there are basically two, that is private and a public one. So what is OPC? The Companies Act 2013 introduced a new class of companies which can be incorporated by a single person. Section 2, Clause 62 of the Companies Act 2013 defines one-person company (OPC) as a company which has only one person as a member. One-person company has been introduced to encourage entrepreneurship and corporatization of business. OPC differs from sole proprietary concern in an aspect that OPC is a separate legal entity with a limited liability of the member, whereas in the case of sole proprietary, the liability of owner is not restricted and it extends to the owner's entire assets, constituting to official and personal. So, the procedural requirements of an OPC are simplified through exemptions provided under the Act in comparison to the other forms of companies. According to Section 3, Section 3, subsection 1, Clause C of the Companies Act 2013, OPC is a private limited company with the minimum paid up share capital as may be prescribed and having one member. So this is the definition of companies like OPC from the Companies Act 2013. If you are asked to define what is OPC, you may define it as Section 3, subsection 1, Clause C of the Companies Act 2013. OPC is a private limited company with the minimum paid up share capital as may be prescribed and having one member. Okay. And over here also, Section 2, Clause 62 of the Companies Act 2013 defines one-person company as a company which is only one person as a member. That is also the same definition. OPC, significant points. Only one person as a member, minimum paid up capital, no limit prescribed, and the memorandum by its the memorandum of OPC shall indicate the name of the other person who shall, in the event of subscriber's death or in his incapacity to contract, become the member of the company. Now, this other person, who is this other person? The other person in the nomination clause. Who is in the nomination clause, we have to write the name. Okay, nominees, this one other person is known as nominee. Okay, so this other person is nominee. So I have told you the basic difference between a nominee and a member. A person cannot become a nominee in two OPC. A member cannot become a member in two OPC. Members also you cannot become into OPC, and nominee also. So you have been given 180 days if the the sole one owner is there only, of course. So if that owner of the other OPC from where you are the nominee, and in that I hope that you remember the example, basically there is A OPC and B limited OPC. Okay, so A limited OPC, let's say A is the member and A is the nominee in B limited's OPC. Now B limited is the member in his OPC and B is also a nominee in A's OPC. Okay, so that is okay. But if suppose B dies, or he becomes insolvent, for example. So what A has, A is the nominee in B's limited B OPC. Okay, so what does he get? He gets 180 days to decide whether he wants to become the member of, whether he wants to continue becoming the member of A OPC, or whether he wants to leave A OPC and become a member of B OPC. So that is what it is. So other person nominee hota hai, the other person whose name is given in the memorandum shall give his prior written consent in prescribed form, and the same shall be filed with registrar of the companies at the same time of incorporation of the company along with its e-memorandum and e-article. Such as other person may be given the right to withdraw his consent, यानी कि अपना consent वो वापस भी ले सकता है. वो बोल सकता है कि अब मुझे इसका जो है nominee नहीं बनना. Okay, so that is it. The member of OPC may at any time change the name of such other person by giving notice to the company, and the company shall intimate the same to the registrar. यानी कि वो जो OPC का member है ना, किसी भी time पे अगर वो अपना नाम हटाना चाहता है या किसी और person का नाम देना चाहता है, तो वो that he can do by giving notice to the company, and the company shall intimate the same to the registrar. ठीक है. Any such change in the name of the person shall not be deemed to be an alteration of the memorandum. उसको हम लोग alteration of memorandum नहीं कहेंगे. Only a natural person who is an Indian citizen, whether resident in India or otherwise, shall be eligible to incorporate a OPC, shall be a nominee for the sole member of the OPC. देखो, OPC बनाने के लिए, OPC member बनने के लिए हमें दो कंडीशन चेक करना है. दो कंडीशन हमारे क्या क्या हैं? दो कंडीशन आपको ऐसे चेक करना है कि आप या तो नहीं, आपको दोनों होना चाहिए. आपको बेसिकली क्या होना चाहिए? आपको एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, उसी के साथ साथ आपको एक इंडियन सिटीजन भी होना चाहिए. इफ यू कैन सी दिस, दीज आर द नोट्स. आपको नेचुरल पर्सन भी होना चाहिए, एंड विद दैट हु इज एन इंडियन सिटीजन वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, एंड हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड
पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ये ना बेसिकली डिफिनेशन दिया हुआ है कि रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे explanation 1, for the purposes of this rule the term resident in India means a person who has stayed in India for a period of not less than 120 days during the immediately preceding financial year। या तो अगर आप LLP का अगर definition याद करो, उसमें आपको LLP का फॉरेन LLP नहीं, उसमें LLP बनाने के लिए आपका जो मेंबर होता है और एक हमारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है, आई थिंक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ही होता है। सो LLP में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, सेक्शन 7 में वो लिखा गया है, ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। तो उसमें LLP में बताया गया है कि वो बनने के लिए ना आपको ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर में आपको स्टे करना है इंडिया में। दैट इज व्हाट रेजिडेंट इन इंडिया इज एक्सप्लेन्ड इन द LLP चैप्टर, ठीक है। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 OPC और बिकम नॉमिनी इन मोर देन 1 सच कंपनी। एक व्यक्ति जो है एक ही OPC में ही मेंबर या नॉमिनी बन सकता है, एक से ज़्यादा नहीं, ओके। नो माइनर शैल बिकम मेंबर ऑफ द नॉमिनी ऑफ द OPC और कैन होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट। हाँ, पार्टनरशिप में तो होता था कि वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए वो आ सकता है, बट इन केस ऑफ OPC ना कोई भी तरह का माइनर या फिर कोई भी तरीके का लाइक माइनर ही मेंबर या नॉमिनी नहीं बन सकता है, या तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए भी वो होल्ड नहीं कर सकता है शेयर को। सच कंपनी के नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, यानी कि सेक्शन 8 कंपनी में वो नहीं कन्वर्ट हो सकता है। बेसिकली सेक्शन 8 क्या है? चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के साथ जो कंपनी चलता है। दो इट में बी कन्वर्टेड टू प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज इन सर्टन केसेस, यानी कि OPC प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में तो कन्वर्ट हो सकता है कुछ कुछ केसेस में। सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज of any body corporates। I hope it's clear। Here the member can be a sole member or director, यानी कि here the member can be the sole member and director, ठीक है। OPC क्या है? 1% कंपनी है, प्राइवेट कंपनी नेचर है, encourages entrepreneurship and corporatization of business, procedural requirements are simplified through exemptions, separate legal entity होता है, limited liability होता है। अब देखो प्राइवेट कंपनी क्या होता है, तो आई होप कि OPC का सारा पॉइंट्स क्लियर है। इफ नॉट देन लेट्स सी इट वन बाय वन। एंड OPC इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ऑल OPC आर प्राइवेट बट ऑल प्राइवेट कंपनी आर नॉट OPC। OPC has only one person as a member। OPC has important features like separate legal entity, limited liability। Every OPC shall have one person appointed as a nominee in case of member's death or incapacity of the contract। Nominee's written consent is required in the presented form file to ROC। Nominee can withdraw his or her consent। Member can change nominee's name but he has to intimate the OPC and ROC, okay। Apart from that, OPC can be a member in only one OPC, ठीक है। one person can be a nominee in only one OPC, ठीक है। तो that is the same। उसके बाद दो कंडीशन हम लोग को क्या चेक करना है कि वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, एंड विद दैट हु इज इंडियन सिटीजन whether resident in India or otherwise and has stayed in India for a period of not less than 120 days during immediately preceding financial year shall be eligible to incorporate an OPC and shall be nominee for the sole member of the OPC। अगर सब्सक्राइबर का डेथ होता है या तो इनकैपेसिटी या तो होता है टू कॉन्ट्रैक्ट बिकम अ मेंबर ऑफ सच OPC, यानी कि अगर ये इंसॉल्वेंट हो जाएगा या फिर इनकैपेसिटी हो गया, डेथ हो गया, तो जो A OPC है ना, इसका जो ये नॉमिनी बना हुआ है ना, इसको 180 दिन मिलता है टू डिसाइड वेदर ही वांट्स टू बिकम द मेंबर लाइक मेंबर ऑफ B OPC या तो वो A OPC का ही मेंबर रहना चाहता है। तो दिस वाज द थिंग। उसके बाद हम लोग प्राइवेट कंपनी का बात करते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 68 है हमारा प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड व्हिच आर बाय इट्स आर्टिकल्स। अब देखो OPC में कोई भी तरीके का ना मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं समझाया गया। उसी के साथ साथ ना प्राइवेट कंपनी में भी ये चीज़ नहीं समझाया गया है, पब्लिक कंपनी में भी ये चीज़ नहीं बोला गया है। वेदर स्मॉल कंपनी में बोला गया है, एंड आई होप कि ये जो स्मॉल कंपनी का एक डेफिनेशन जो था कि 4 करोड़ और 40 करोड़ होता है, दैट हैज़ बीन चेंज्ड। वो चेंज हो चुका है, दैट हैज़ बीन ऑल्टर्ड। अब हम लोग बोलेंगे स्मॉल कंपनी में ना जो हमारा कैपिटल है बेसिकली, जो मतलब कैपिटल व्हाट डू वी से, लाइक यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल कंपनी का मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है। सो वी हैव बिन गिवन, ओके। यहाँ पर हम लोग बोलते हैं स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 85 में, आई हैव चेंज्ड इट ओवर हियर। हम लोग का पेड अप शेयर कैपिटल ना 10 करोड़ होना चाहिए। 4 करोड़ वाला अब खत्म हो चुका है, और जो टर्नओवर है ना वो हमारा 40 करोड़ खत्म हो चुका है, अब 100 करोड़ होना चाहिए। तो दिस हैज़ बिन चेंज्ड, ओके। तो आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग। तो प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68 क्या बोलता है? प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी having a minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its articles restricts the right to transfer except in case of OPC limits the number of its member to 200 provided that where 2 or more persons hold 1 or more shares in a company jointly they shall for the purposes of this clause be treated as a single member provided that a person
persons who are in the employment of the company and persons who have been formally in the employment of the company were members of the company while in that employment and having continued to be members after the employment ceased shall not be included in the number of the members and prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities of the company. अब देखो ये जो प्राइवेट कंपनी का बात हो रहा है ना, ये थोड़ा सा ना अंडरस्टैंडिंग का चीज़ है, सो आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड. देखो सबसे पहली बात तो कि प्राइवेट कंपनी का तो क्या सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज 68 प्राइवेट कंपनी बोलता है. अच्छा सेक्शन 44 क्या बोलता है? सेक्शन 44 बोलता है ना कि शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी. हम लोग बात करते हैं क्या सिर्फ प्राइवेट कंपनी में मूवेबल है? नहीं, सिर्फ प्राइवेट कंपनी में ना रिस्ट्रिक्शन है कहा जा सकता है, रिस्ट्रिक्शन है बिकॉज इट रिस्ट्रिक्ट्स यानी कि रोक लगाना, 200 तक रोक लगाना. ओके तो मेंबर्स मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 200 होने चाहिए. पब्लिक कंपनी में ना क्या होता है, उसमें कोई तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, तो इसमें मिनिमम 7 होता है, मैक्सिमम अनलिमिटेड होता है. और अगर बोथ यानी प्राइवेट और पब्लिक में बोला जाता है तो हम बोल सकते हैं कि शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड. हम लोग बात कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी का, तो अ कंपनी इज सेड टू बी प्राइवेट कंपनी विच इज व्हाट, पीपीआर लिमिटेड. हमने बोला जो प्रोहिबिट करे फ्रॉम इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज, जो आर करे यानी रिस्ट्रिक्ट करे बट डू नॉट प्रोहिबिट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, जो लिमिट करे क्या, अलाउड टू हैव लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स दैट इज 200 एक्सेप्ट इन केस ऑफ व्हाट, ओपीसी. ओपीसी और स्मॉल कंपनी हमारा प्राइवेट कंपनी होता है. प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 मेंबर, ओपीसी में एक्सेप्ट ओनली 1. राइट टू ट्रांसफर शेयर्स जो है वो हमारा रिस्ट्रिक्टेड बाय एओए, यानी एओए में जो लिखा रहेगा वही होगा. हम लोग बोल रहे हैं कि काउंट कैसे करेंगे 200 मेंबर को प्राइवेट कंपनी में. देखो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो है, हाउएवर हम लोग मतलब डेफिनेशन हम लोगों ने लिख लिया, तो हाउएवर फॉर काउंटिंग ऑफ 200 मेंबर्स फॉलोइंग शुड बी केप्ट इन माइंड. हम लोग जब काउंट करेंगे ना तो हम लोग 2 बातों का ध्यान रखेंगे, 2 बातों का, ठीक है. पहला तो जॉइंट मेंबर्स हु होल्ड शेयर्स जॉइंटली विल बी काउंटेड एज अ सिंगल मेंबर मीन्स 1, यानी कि कपल्स आर होल्डिंग शेयर्स लाइक जॉइंटली, तो उन लोग का जो जितना भी, यानी कि अगर उन लोग का 10 शेयर है ना तो वी विल काउंट इट एज 5. तो एक्सक्लूड द बिलो फ्रॉम काउंट ऑफ 200 मेंबर्स, यानी कि इन लोग में से ना 200 लोगों को निकालेंगे. किन लोग को? अरे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होंगे ना, हु आर इन एम्प्लॉयमेंट, उनको निकालेंगे पहली बात तो, और फॉर्मर एम्प्लॉयज जो होंगे उनको भी निकालेंगे. लेकिन उसमें भी एक कंडीशन लगा दिया गया है कि हु वर एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी एंड दे बिकेम द मेंबर्स वाइल दे वर इन एम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए वो मेंबर बने हुए हैं और उसके बाद अभी तक एम्प्लॉयमेंट से निकलने के बाद भी वो होल्ड करते हैं वो शेयर्स को, and have continued to hold shares members after the employment ceased, that then shall not include in the number of members. यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं कि स्मॉल कंपनी में जो 200 जो लिमिट है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहली बात तो जॉइंट मेंबर्स जो जॉइंटली होल्ड करते हैं उनको विल बी काउंटेड एज 1, ठीक है. उसके बाद हम लोग एक्सक्लूड करते हैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को हु वर इन एम्प्लॉयमेंट, और फॉर्मर एम्प्लॉयज़ का हमें कंडीशन लगा दिया गया है कि हु वर एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी एंड दे बिकेम द मेंबर्स while they were in the employment and have continued to hold the shares when after the employment ceased, then shall not be included in the members. ठीक है, तो these were the things. और हम लोग बात करते हैं कि अच्छा हम लोग स्मॉल कंपनी का बात कर चुके हैं अभी तक? नहीं, हम लोग स्मॉल कंपनी का बात नहीं किए हैं, वो आगे आएगा. हम लोग बात कर रहे थे प्राइवेट कंपनी का, ओके. तो पर्सन्स हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, पर्सन्स हु हैव बीन फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट. अब देखो हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ओके. इसमें हमें बता दिया गया है कि हमें जो है एम्प्लॉयमेंट में जो थे उनको नहीं निकालना, फॉर्मली जो थे वो नहीं निकालना, उसमें भी कंडीशन मैंने बता दिया. और प्रोहिबिट करता है इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब इनटू एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी. अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास है. नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट विच आई हैव टोल्ड यू. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 एक्सेप्ट if private company is an OPC where it will be 1. Maximum number of members 200 excluding present employee cum members and erstwhile cum employee cum members. यानी कि आप जो present employee उनको छोड़ दो, जो erstwhile पुराने former employees हैं उनको छोड़ दो. उसमें भी कंडीशन क्या है, जो employment में रहते रहते आपके कंपनी का शेयर लिए हैं, employment सीज हुआ, उसके बाद भी वो उस शेयर को होल्ड कर रहे हैं, उन लोग को भी हटा दो. राइट टू ट्रांसफर शेयर रिस्ट्रिक्ट होता है, प्रोहिबिट नहीं होता है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन. प्रोहिबिशन मतलब पूरी तरीके से रोक लगाना, नहीं आप कर सकते हो शेयर को ट्रांसफर. रिस्ट्रिक्ट यानी कि आपने 200 तक रिस्ट्रिक्शन लगाया है, ठीक है, 2 तक रिस्ट्रिक्शन लगाया. प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी. स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी, ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड ओनली एज अ प्राइवेट कंपनी. आते हैं हम लोग स्मॉल कंपनी पे. तो स्मॉल कंपनी गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, which means a company other than a public company जिसका paid up share capital of which does not exceed
4 करोड़ रुपीज़। अच्छा, ये जो था ये अब चेंज हो चुका है, अब ये जो है दिस वन इज नॉट रिलेवेंट। हाँ, इन स्मॉल कंपनी ना दीज टू थिंग्स आर अमेंडेड राइट नाउ। पेड अप शेयर कैपिटल हमारा पहले 4 करोड़ रुपीज़ हुआ करता था, उससे भी पहले जो हुआ करता था ये हमारे बुक में छपा हुआ है, बट वो नहीं था। और इससे पहले वाले में जो है 4 करोड़ रुपीज़ हमारा पेड अप शेयर कैपिटल था, और जो कि मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया नोट्स का, तो उसमें भी 4 करोड़ बताया, 40 करोड़ टर्नओवर बताया है। तो पेड अप शेयर कैपिटल हैज़ बीन अमेंडेड। अब अमेंड करके ना उसको 10 करोड़ रुपीज़ कर दिया गया, टर्नओवर को ना 100 करोड़ रुपीज़ कर दिया गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल कंपनी गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विच मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज़, turnover of which as per profit and loss account for the immediately preceding financial year does not exceed 100 crore rupees, हम लोग ये बोलेंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से टू यू ऑल गाइज। इसमें एक्सेप्ट हम लोग करते, एक्सेप्शन है हमारा, एक्सेप्शन का निमोनिक है HS8S। ये क्या है, अब हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा जो ये स्मॉल कंपनी है वो क्या है, उसका हमें रिक्वायरमेंट पता चल गया। लेकिन अगर ये सभी कंपनीज में ये सभी चीज़ें कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो क्या हम उनको स्मॉल कंपनी बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर कोई होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का किसी दो कंपनी में रिश्ता है तो अगर वो ये रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल कर भी रहे तो दे विल नॉट बी कंसिडर्ड स्मॉल कंपनी। एच हो गया हमारा यहाँ पर द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 एसेट हो गया हमारा यहाँ पे। अगर कोई सेक्शन 8 वाली कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 10 करोड़ रुपया है, जिसका टर्नओवर 100 करोड़ रुपया, तो क्या हम उसको स्मॉल कंपनी डिक्लेयर कर दें? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, उसको हम लोग नहीं मानेंगे। अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, यानी कि कोई भी तरीके का ना मतलब कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो कि स्पेशल एक्ट से गवर्न होता है, वो भी अगर ये सब रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है तो दैट ऑल्सो विल नॉट बी कंसिडर्ड एज स्मॉल कंपनी। नाउ लेट अस मूव फर्दर फॉर द purposes of subclause 1 and subclause 2, subclause 1 and subclause 2 ये वाली of the clause 85 of the section 2 of the act, paid up capital and turnover of the small company shall not exceed rupees 4 crores and rupees 40 crores respectively. Company's specification of definition details amendment rules to 2022 with effect from 15 September 2022। ये पहले की बात है कि ये जो हमारा पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर का बात कर रहा है, पहले ना हमारा 4 करोड़ रुपीज़ और 40 करोड़ रुपीज़ था, ठीक है। ये इस वाले से कंपनीज स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स अमेंडमेंट रूल्स 2022 के कारण, लेकिन अब ये अमेंड और अच्छी तरीके से हो गया और ये अब 10 करोड़ और ये 100 करोड़ हो चुका है, तो दैट इज कंफर्म नाउ। स्मॉल कंपनी में सिग्निफिकेंट पॉइंट्स है क्या कि ये एक प्राइवेट कंपनी है, पेड अप कैपिटल नॉट मोर देन 4 करोड़ रुपीज़ है एंड टर्नओवर नॉट मोर देन 40 करोड़ रुपीज़, शुड नॉट बी सेक्शन 8 कंपनी, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। ये जो है ना ये चेंज हो चुका है, ये 10 करोड़ हो चुका है नाउ, ये 10 करोड़ हो चुका है, ये हो चुका है हमारा 100 करोड़ रुपीज़। ओके, अब हम लोग बात करते हैं पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 71 में। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड हैज़ अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी। नाउ आई होप कि ये स्मॉल कंपनी, आई होप कि ये क्लियर है, इफ नॉट देन लेट अस सी इट वंस अगेन। इसमें ना देखो, कंपनी मीन्स देखो, अगर क्वेश्चन में ना पब्लिक कंपनी दे दे यानी कि लिमिटेड बोल दे, अगर वो लिमिटेड बोल दे ना, आर लिमिटेड मान लो, तो वो क्या पब्लिक कंपनी कहलाएगा। पब्लिक कंपनी का बात हो गया तो वो आएगा ही नहीं, उसको सीधे आप लोग बोलोगे दिस कैन नॉट बी फॉर्म्ड एज अ स्मॉल कंपनी, क्योंकि कंडीशन क्या है, प्राइवेट कंपनी होना चाहिए। उसके बाद आपको कंडीशन चेक ही नहीं करना है कि क्या बोल रहा है आगे, टर्नओवर क्या बोल रहा है, पेड अप शेयर कैपिटल क्या बोल रहा है। देखो, पेड अप शेयर कैपिटल बोल दिया 10 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़, फुलफिल बोथ कंडीशन करना चाहिए। एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड जो है, मतलब पहले ऐसा था तो वो पूरा अमेंड कर दिया गया। इट इज़ अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी हुज पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज़ एंड लिखा हो यानी कि प्लस समझो, ठीक है। टर्नओवर एज पर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 100 करोड़। अ कंपनी हैज़ टू सेटिस्फाई बोथ द अबव कंडीशंस। एक्सेप्शन हमारा दिया गया HS8S होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज हो तो वो नहीं आएगा, सेक्शन 8 वाली कोई कंपनीज हो तो भी नहीं आएगा। और क्या था, एनी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल एक्ट, कोई भी तरीके का स्पेशल एक्ट में अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं बैंकिंग एक्ट होता है ना, एक बैंकिंग एक्ट होता है हमारा,
उसके बाद हमारा कुछ इंसॉल्वेंसी करके कुछ होता है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी का अलग होता है, ये सब बात हो रहा है। उसके बाद हमारा लिखा हुआ है, हाँ देखो, होल्डिंग सब्सिडरी, हाँ इलेक्ट्रिक कंपनी का हो गया, बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी का हो गया, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड ए स्मॉल कंपनी। अब हम लोग बात करते हैं ना पब्लिक कंपनी के बारे में। तो पब्लिक कंपनी का बेसिकली क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 71, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। बहुत बेसिक सा डेफिनेशन है। पब्लिक कंपनी क्या है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो प्राइवेट कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी वो है जो पीपीआर लिमिटेड है। क्या है वो प्रोहिबिट करता है टू इनवाइट शेयर्स टू द पब्लिक फॉर इनविटेशन, ठीक है। और क्या है, रिस्ट्रिक्ट करता है ट्रांसफर इट्स राइट्स टू इट्स शेयर्स, ठीक है, ट्रांसफर द राइट्स टू लाइक रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। उसके बाद इट हैज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी, वेट, इसका क्या है, लिमिट लगाता है ना, लिमिट लगाता है, क्या लगाता है, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200, यानी लिमिट लगाता है 200 तक मेंबर्स का, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी वो सब नहीं करता है। पब्लिक कंपनी क्या नहीं करता है, पब्लिक कंपनी प्रोहिबिशन नहीं लगाता है, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है, लिमिट नहीं रखता है। तो that is not a private company, has a minimum paid up share capital as may be prescribed, provided that a company which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be a public company for the purposes of this act, even where such subsidiary companies continues to be a private company in its articles। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि अगर हमारा होल्डिंग सब्सिडरी का, आई होप कि ये क्लियर है, होल्डिंग कंपनी क्या होता है, ऐसी कंपनी जो किसी कंपनी का ना मोर देन 50% को होल्ड करती है। तो मान लो एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, वो सब्सिडरी है एक पब्लिक कंपनी का। ये जो प्राइवेट कंपनी है ना, ये पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी है, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी से जो पैसा मिलता है, लाइक पब्लिक से जो पैसा मिलता है पब्लिक कंपनी को, उसका वो सब्सिडरी वगैरह बना देती है, जो भी करती है सब्सिडरी है उसका। तो दिस प्राइवेट कंपनी विल बी अ डीम्ड पब्लिक कंपनी, ये मानी जाएगी। ये जो प्राइवेट कंपनी है ना, अपने नाम के आगे अगर प्राइवेट लिमिटेड भी लगाती है, 200 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं है, तब भी इसको कंप्लायंसेस के लिए, रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए, पेनल्टीज के लिए इसको हम लोग मानेंगे कि ये एक पब्लिक कंपनी है, कंप्लायंसेस के लिए सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो ये जो मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, इवन वेयर सच सब्सिडरी कंपनीज कंटिन्यूज टू बी अ प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल्स। पब्लिक कंपनी के सिग्निफिकेंट पॉइंट्स क्या है कि इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, आर्टिकल्स डू नॉट हैव द रिस्ट्रिक्टिंग क्लॉज, यानी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता है, शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब पेड अप कैपिटल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है 7, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे नो लिमिट, सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। अब कैसा भी वो कंपनी हो, लेकिन अगर सब्सिडरी हो गया पब्लिक कंपनी का, सो दैट इज डीम्ड पब्लिक कंपनी फॉर व्हाट, फॉर कंप्लायंसेस, फॉर रिपोर्टिंग पर्पसेस, फॉर पेनल्टीज, ठीक है। According to section 3 subsection 1 clause A, a company may be formed for any lawful purposes by 7 or more persons where the company to be formed to be a public company। ये definition है, बहुत सा basic सा है कि a company may be formed for any lawful purpose और by 7 or more persons where the company to be formed is to be a public company। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। अब हम लोग बात करेंगे होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज पे, ठीक है। उसके बाद हमारा एसोसिएट कंपनीज भी होता है। अब देखो, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज समझने के लिए हम लोग बात करते हैं, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज आर रिलेटिव टर्म्स होते हैं। कंपनीज अ होल्डिंग कंपनी रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी। सेक्शन 2 clause 46 Section 2 clause 46 holding company. For the purposes of this clause, the expression company includes any body corporate where section 2 clause 87 defines subsidiary company in relation to any other company. That is to say, the holding company means a company in which the holding company controls the composition of the board of directors or exercises or controls more than one half of the total voting power, either at its own or together with one or more of its subsidiary companies। देखो, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी क्या होता है, बहुत ईजी सा चीज़ है। ये जो है यहाँ पर देखा जाए तो ये देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं मेटा कंपनी का। मेटा कंपनी है और फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह जो हैं वो उसकी सब्सिडरीज हैं। हम लोग चेक करते हैं ना दो कंडीशन, ये पता करने के लिए कि क्या ये दोनों कंपनीज होल्डिंग सब्सिडरी हैं। सबसे पहला तो हम लोग देखते हैं कि क्या ये जो कंपनी है, सब्सिडरी में बैठी हुई कंपनी है, इसका सारा कॉम्पोजिशन, उसका कंट्रोल, उसका अपॉइंटमेंट, उसका रिमूवल, उसका डायरेक्शन, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह हैं, उसका एक्सेस एंड ऑल परफॉर्मेंस वगैरह, क्या इसके डिस्क्रिप्शन पे चल रहे हैं, इसके कहे अनुसार चल रहे हैं। पहला हमारा बीओडी का देखते हैं, मेजॉरिटी या तो ऑल जो कंपोजिशन है वो कंट्रोल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी, ठीक है।
तो हम लोग बोल देंगे वो होल्डिंग कंपनी है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग दूसरा कंडीशन भी चेक करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है, और यानी कि या होता है या तो ये या तो ये। तो पहले तो कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन रहेगा, कौन भागेगा। बट उसके साथ साथ हमारा दूसरा कंडीशन है ना कि एक्सरसाइजेस कंट्रोल मोर देन वन हाफ यानी कि 50% से ज्यादा, वन हाफ से ज्यादा का जो कंट्रोल है, का जो वोटिंग पावर है, वोटिंग पावर डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली थ्रू इट्स सब्सिडरीज भी हो सकता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो मोर देन 50% हो गया तो दैट इज व्हाट, दैट इज अ होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन। अब जैसे कि अगर मान लो कि शेयर कैपिटल है कंपनी का 100 लाख, लाइक 100 लाख डॉलर्स, ठीक है, 100 लाख डॉलर से हमारा शेयर कैपिटल, मेटा जो होल्ड करता है ना वो 60 लाख डॉलर्स होल्ड करता है। सो 60 लाख डॉलर्स जो ना मोर देन 50% है, ठीक है, यानी कि 50 लाख 10,000 हमारा जो है, जो कि मोर देन 50% है। तो हम लोग बोलेंगे कि मेटा और जो फेसबुक है उन लोग का होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन है। अगर एग्जैक्ट 50% हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं, ये होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता नहीं कहलाता है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी के बारे में और एग्जैक्ट 50% आपका निकल गया, सो यू विल नॉट मेंशन द टर्म एसोसिएट कंपनी। आ गया एसोसिएट कंपनी, आएगा एसोसिएट कंपनी में हम लोग पढ़ते हैं कि 20% से 50% तक का होना चाहिए, बट वी आर नॉट गोइंग टू मेंशन दैट इन द आंसर इफ इट इज लाइक 50%। हम लोग बात कर रहे हैं कि कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ बीओडी में क्या होता है, मेजॉरिटी और ऑल, यानी कि आउट ऑफ मान लो 12 डायरेक्टर्स है, 4 को अगर आप कंपोजिशन को कंट्रोल कर रहे हो तो क्या आप कहलाओगे होल्डिंग सब्सिडरी? नहीं कहलाओगे। 6 एग्जैक्ट 6 हो गया, पूरा आधा हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। 50 से ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेजॉरिटी और ऑल। मेजॉरिटी क्या है? 7 मेजॉरिटी है, 7 मेजॉरिटी, क्योंकि 7 इफ यू लाइक देखो 7 है ना, 12 में से 7 माइनस करोगे तो यू विल हैव 5 लेफ्ट, ठीक है। तो जो 5 लेफ्ट हो गया ना उसका बात हम लोग नहीं करें। यहाँ पे 7 को आप कंट्रोल कर रहे हो ना, या तो मेजॉरिटी या तो ऑल, 12 को कंट्रोल कर दो। कंट्रोलिंग द वोटिंग पावर ऑफ मोर देन 50% आउट ऑफ टोटल जो शेयर कैपिटल है ना, आपको एग्जैक्टली 50%, उससे मिनिमम नहीं, एकदम 51% होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है इसमें? अगर 51% चलेगा, ओके, लाइक मोर देन 50% होना चाहिए, एग्जैक्ट 50% नहीं चलेगा, ठीक है। अगर 50% से 0.1% भी हो गया तो चलेगा, मोर देन 50% होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का काम, ओके। उसके बाद हमारे पास आता है एक और पॉइंट कि प्रोवाइडेड दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज बियॉन्ड सच नंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब इसमें एक और चीज़ है, हम लोग बात करते हैं चेन इफेक्ट के बारे में। चेन इफेक्ट के बारे में, ए जो कंपनी है वो हमारा होल्डिंग कंपनी है बी का, बी में वो 55% होल्ड करता है, बी जो है सी का 65% होल्ड करता है, सी जो है डी का 60% होल्ड करता है। चेन इफेक्ट इसको कहते हैं। डी हमारा अल्टीमेट सब्सिडरी हो जाएगा कंपनी और ए हमारा अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए जो है वो बी का 60% होल्ड करता है और बी सी का 20% होल्ड करता है। बी तो सब्सिडरी कंपनी है ए का, और ए ना सी का डायरेक्टली 45% होल्ड करता है। देखो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होल्ड करना चाहिए 50% से ज़्यादा। हम लोग क्या देख रहे हैं, 45% प्लस 20% कितना हुआ, 65% हुआ, तो वो मोर देन 50% हो गया। तो हम लोग बोलेंगे ना कि इनडायरेक्टली, पहले तो देखो डायरेक्टली ए बी तो होल्डिंग सब्सिडरी है ही, ये तो कंफर्म है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ए एंड सी का रिश्ता। तो ए एंड सी ना इनडायरेक्टली वो होल्डिंग सब्सिडरी है क्योंकि 65% इज मोर देन 50%, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका, ए और बी 20% है, ए होल्ड कर रहा है बी का, और बी ना 20% इनडायरेक्टली होल्ड कर रहा है, ए 45% डायरेक्टली होल्ड कर रहा है। देखो डायरेक्ट रिलेशन क्या है, ए सी का 45%, क्या होल्डिंग सब्सिडरी है? बिल्कुल नहीं, इट इज लेस देन 50%। इन दोनों का क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बी तो इसकी सब्सिडरी है ही नहीं। उसके बाद हम लोग होल्डिंग कंपनी का एक बताते हैं कि अ कंपनी कंटेन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट इज अ होल्डिंग कंपनी हु कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक्सरसाइजेज और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ईदर दैट इज मोर देन 50% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। कंट्रोलिंग बीओडी का मतलब होता है हाई कोर्ट एट इट्स डिस्क्रिशन कैन अपॉइंट यानी कि ऐड कर सकता है, और रिमूव यानी कि हटा सकता है, ऑल द और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स डायरेक्टली यानी कि ईदर ऑन इट्स ओन, इनडायरेक्टली यानी कि टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज। उसके बाद हमारे पास आता है सब्सिडरी कंपनी। तो सेक्शन 2 क्लॉज 87 कहता है कि सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, दैट इज टू से द होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी होल्ड्स और कंट्रोल्स मेजॉरिटी और ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या
या फिर एक्सरसाइजेज और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 यानी कि 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर्स डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। कंट्रोलिंग ऑफ BOD तो ये तो हमने पढ़ लिया, that can appoint and remove a majority or all, or he can exercise or control through voting power either directly or together or more than। ठीक है, ये था हमारा होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का ये चीज़। अब यहाँ पर देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का हम लोग एक और तरीके से हम लोग देखते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है उसका रिलेशन हम लोग करते हैं। तो देखो बी जो है ना वो सब्सिडरी कंपनी है ए का, सी सब्सिडरी कंपनी दूसरा है सब्सिडरी कंपनी ए का। डी को होल्ड करता है बी 25% से और सी होल्ड करता है 26% से। इसको ऐड करेंगे ना तो वी विल बी गेटिंग 51% विच इज मोर देन 50%। तो हम लोग बोलेंगे ना कि डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली ना डी भी ए का सब्सिडरी कंपनी ही है। तो दीज वर द केसेस वेयर हम लोग बोलते हैं कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हो सकता है। यहाँ पे था कंपनी शेल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी कंपनी of a holding company even if the control referred to in subclause 1 or subclause 2 is another subsidiary company of the holding company. The composition of a company's board of directors shall be deemed to be controlled by another company if that other company may by exercise of some power exercisable by it at its discretion can appoint or remove all or majority of directors. The expression company includes any body corporate layer in the relation of holding company means subsidiary or subsidiaries जो मैंने chain effect आपको पढ़ाया। Example दिया हुआ है A will be a subsidiary of B if B controls the composition of BOD of A, that is if B can without the consent or approval of another person appoint or remove a majority of directors of A। Example दिया हुआ A will be subsidiary of B if B holds more than 50% of the share capital of A। Example दिया हुआ fourth हमारा कि B is a subsidiary of A and C if is B is a subsidiary of A and C is a subsidiary of B. In such a case, C will be the subsidiary of A. In like manner, if D is the subsidiary of C, D will be subsidiary of B as well as A and so on। ये हमारा चेन इफेक्ट का एग्जाम्पल दे दिया। स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी टू अ पब्लिक कंपनी, ये मैंने आपको बहुत पहले समझा दिया। कोई भी प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी का क्या है सब्सिडरी है उसको क्या कहेंगे हम लोग, डीम्ड पब्लिक कंपनी। फॉर व्हाट, फॉर कंप्लाइंसेस, फॉर लीगल कंप्लाइंसेस, फॉर पेपर वर्क, फॉर टैक्सेशन एंड ऑल, ठीक है, फाइलिंग वगैरह, ठीक है। इन व्यू ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 71 जो कि पब्लिक कंपनी का ना है, सेक्शन 2 क्लॉज 71 हमारा पब्लिक कंपनी का, ठीक है। ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पसेस ऑफ द एक्ट इवन वेयर सच सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यूज टू बी अ प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल्स में बोलो ना तुम प्राइवेट कंपनी हो, आर्टिकल्स में बोलो, खूब बोलो। 200 मेंबर है ना, 200 मेंबर ही रहो, 200 मेंबर से ज्यादा नहीं कर सकते हो। ट्रांसफर करना है शेयर, अब तो डीम्ड पब्लिक कंपनी हो गया, अब तो आप बाहर से भी ऑफर वगैरह एक्सेप्ट कर सकते हो, नहीं तब भी नहीं करना है। ओके, तो ये था हमारा deemed public company। Associate company is section 2 clause 6 in relation to another company means a company in which that other company has a significant influence but which is not a subsidiary company of the company having such influence and includes a joint venture company। Explanation for the purposes of this clause, the expression significant influence means control of at least 20% of the total voting power or control of or participation in the business decisions under an agreement। The expression joint venture means a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement। सिंपल सा बात है, एसोसिएट कंपनी मिनिमम 20%, मैक्सिमम 50%, एग्जैक्ट 20% चलेगा, एग्जैक्ट 50% चलेगा, आप एसोसिएट कंपनी में होगे। 19.99% नहीं चलेगा, 50.1% अरे वो तो होल्डिंग कंपनी हो गया। ये था हमारा एसोसिएट कंपनी। एंड इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि एसोसिएट कंपनी क्या होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, अ कंपनी इन विच अदर कंपनी होल्ड्स एटलीस्ट 20% बट मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर विच इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अगर आपसे पूछा जाए क्या है तो आप बोलोगे कि 20% से 50% का जो स्टेक होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। एसोसिएट कंपनी इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। देखो एसोसिएट कंपनी कभी भी सब्सिडरी कंपनी हो ही नहीं सकता। इट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर एज वेल, यानी जॉइंट वेंचर भी ये इंक्लूड करता है। अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। एक्सेस टू कैपिटल पे हमारा दो तरीके का होता है, लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी एज पर द डेफिनेशन गिवन इन द सेक्शन 2 clause 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इट इज अ कंपनी which has by any of its such securities listed to any recognized exchange, stock exchange, provided that such class of companies which have listed or intended to list such class of securities as may be prescribed in consultation with the Securities and Exchange Board shall not be considered as listed companies। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है ना,
लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 52। ये एक ऐसा कंपनी है ना जो कि किसी भी तरीके का हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज, किसी भी तरीके का सिक्योरिटी लिस्ट किया गया है कोई रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हम लोग बोलेंगे एनएससी और बीएससी को, इसके अलावा भी होते हैं बट वी आर टॉकिंग अबाउट मेन, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट सच क्लास ऑफ कंपनी, उनके क्लास ऑफ कंपनी ना विच हैव लिस्टेड और इंटेंड टू लिस्ट सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज लिस्टेड कंपनी। यानी कि ऐसा प्रोवाइड किया जाता है कि उसके क्लास ऑफ कंपनीज में ना विच हैव लिस्टेड या तो लिस्ट करने के लिए इंटेंड कर रहे हो उस क्लास ऑफ सिक्योरिटीज को एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, बाकी बाद में इन कंसल्टेशन विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड, यानी कि सेबी शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज लिस्टेड कंपनीज। तो क्या इसको हम लोग बोलेंगे शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनीज। सो यहाँ पर हमारा पास लिखा हुआ है कि कंपनी विच हैज ओनली any of its securities listed on any recognized stock exchange yani BSE provided such class of companies which have listed or intend to list its securities in consultation with SEBI shall not be considered as listed companies. Let's check. ये not be considered as listed companies लिखा हुआ है, but what module is saying we have to follow that. So we will be saying not shall not be considered as listed company, whereas unlisted company का definition simple, company other than listed company, ऐसा company जो listed company नहीं है वो हमारा unlisted company है। example दिया हुआ है Scan Steel Rods Limited is a public limited company whose shares are listed in the stock exchange Kolkata, hence Scan Steel Rods Limited is a listed company. The reason for calling it listed is because the company and the stock exchange have signed a listing agreement for trading of shares in the capital market. यानी उसने साइन किया है ना लिस्टिंग अग्रीमेंट कि वो ट्रेड करेगा कैपिटल मार्केट में, तो वो क्या हो गया, वो हमारा लिस्टेड कंपनी हो गया सेक्शन 2 क्लॉज 52। बट अनलिस्टेड कंपनी क्या है ना, अनलिस्टेड कंपनी मींस कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी। सिंपल डेफिनेशन, अदर कंपनीज में हमारे पास आते हैं 3 4 5 6 कंपनीज आते हैं हमारे पास अदर कंपनीज में। गवर्नमेंट कंपनी है सेक्शन 2 क्लॉज 45, फॉरेन कंपनी है सेक्शन 2 क्लॉज 42, डोरमेंट कंपनी है सेक्शन 455, सेक्शन 8 कंपनी है जो कि चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए बताता है, सेक्शन 8 तो लिखा हुआ है तो सेक्शन 8 ही है। निधि कंपनी है 406 क्लॉज 1, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं पीएफआई सेक्शन 2 क्लॉज 72 भी है। सेक्शन 2 क्लॉज 71 किसका था, पब्लिक कंपनी का था, पब्लिक कंपनी का था। यहाँ पे देखो पब्लिक कंपनी का लिखा हुआ है, आई रिमेंबर पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 71, 72 कौन सा हो गया, वो भी पब्लिक से रिलेटेड है लेकिन ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, तो 71 था पब्लिक कंपनी, 72 क्या हो गया, सेक्शन 2 क्लॉज 72 पीएफआई हो गया। देखो गवर्नमेंट कंपनी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट कंपनी। देखो गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स और पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट governments, and the section includes a company which is a subsidiary company of such a government company. Now this explanation needs some more explanation. कैसे, देखो सबसे पहले तो गवर्नमेंट कंपनी का हम लोग 2 तरीके का डेफिनेशन निकालेंगे, मतलब डेफिनेशन से 2 बातें निकालेंगे। सबसे पहली बात तो ये बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी ना जरूरी नहीं है कि वो पब्लिक कंपनी ही हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट कंपनी मे बी अ प्राइवेट कंपनी, मे बी अ पब्लिक कंपनी, लेकिन हम लोग नाम के आगे नाम के पीछे तो हम लोग लिमिटेड ही लगाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाएंगे। अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी है तो भी हम लोग उसमें लिमिटेड ही वर्ड लगाएंगे। देखो पहला तो चीज़ है कि उसका गवर्नमेंट कंपनी कब कहलाएगा, यानी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 51%, नॉट लेस देन 51%, यानी एग्जैक्ट 51% चलेगा, 51.1% चलेगा क्या, 50.9999% चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, वो चला जाएगा एसोसिएट कंपनी में। हम लोग बात कर रहे हैं, अच्छा वो नहीं हम लोग बोलेंगे, एसोसिएट कंपनी नहीं बोलेंगे अभी क्योंकि बोला नहीं गया है, ओके। तो हम लोग बात कर रहे हैं, अच्छा वो होल्डिंग कंपनी, मोर देन 50% हमारा होल्डिंग कंपनी हो जाएगा बेसिकली, तो एसोसिएट कंपनी तो एग्जैक्ट 50% या तो होल्डिंग कंपनी वो चला जाएगा, होल्डिंग सब्सिडरी का। बट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का बात कर रहे हैं। तो देखो यानी कि पेड अप शेयर कैपिटल हमारा टोटल वोटिंग पावर होता है नॉट लेस देन 51%, ईदर सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स और बोथ, यानी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन हमारे पास तो 2 चीज़ें निकलती हैं। 2 चीज़ें क्या निकलती हैं कि कंपनी जो है उसका गवर्नमेंट कंपनी कब कहलाएगा, कि जब पेड अप शेयर कैपिटल उसका नॉट लेस देन 51% जो है दैट इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बोथ। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इनडायरेक्ट का हम लोग बात नहीं करते हैं। गवर्नमेंट कंपनी थ्रू पीएफआई, थ्रू एलआईसी, थ्रू अदर गवर्नमेंट कंपनी हम लोग बोलेंगे, उसको इग्नोर करना है, ठीक है। तो नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स
is held by central government, by the central government or by the state government or governments, or by the state government or by any of the state government or governments, or partly by central government and partly by one or more state governments. हम लोग फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय any state government or governments or partly by the central government and partly by one or more state governments and the section includes, ये वाला जो लाइन है इसका मतलब है कि ये तो होना ही चाहिए, इसके साथ यानी कि प्लस इसके साथ जो गवर्नमेंट कंपनी है उसकी सब्सिडरी कंपनी भी होनी चाहिए. हमने डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी सुना. अब ये जो सब्सिडरी कंपनी है यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट, गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडरी कंपनी ना प्राइवेट कंपनी भी हो सकता है, पब्लिक कंपनी भी हो सकता है, बट हमारा जो है मेन मुद्दा है कि वो होना चाहिए, उसमें सब्सिडरी होना चाहिए. गवर्नमेंट कंपनी शुड इंक्लूड अ सब्सिडरी कंपनी जो कि डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी. हम लोग ये चेक करते हैं सबसे पहला तो हम लोग होल्डिंग सब्सिडरी का सिचुएशन हम लोग चेक करते हैं. क्या जो क्वेश्चन में है उसमें होल्डिंग और सब्सिडरी का रिश्ता बताया जा रहा है, यानी कि मोर देन 1/2 ऑफ द शेयर जो है वो हेल्ड बाय द मतलब अपर कंपनी है या नहीं. उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि वो गवर्नमेंट का स्टेटस होल्ड करती है या नहीं, यानी कि एटलीस्ट 51% हम लोग चेक करते हैं पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट. एक बार फिर से हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं. तो गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 2 क्लास 45 बताता है कि गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स और partly by the central government and partly by one or more state governments and the section includes a company which is a subsidiary company of such a government company. इसका explanation है For the purposes of this clause, the paid-up share capital shall be constructed as total voting power, where shares with differential voting rights have been issued. Government company at least 51% of the paid-up share capital is held by the central government or any state governments, or partly by central government and partly by one or more state government. तीन चीज हम लोगों ने याद रखा. चौथा चीज तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मतलब बाद में उस डेफिनेशन में जोड़ेंगे, यानी कि सब्सिडी वाला सिस्टम. तीन चीज है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स और partly by the central government and partly by one or more state governments, and the section includes a company which is a subsidiary company of such a government company. टोटल वोटिंग पावर का बात हो गया. फॉरेन कंपनी क्या होता है, सेक्शन 2 क्लॉज 42. इसमें हम लोग मात्र दो चीज हम लोग चेक करेंगे. फॉरेन कंपनी में सिर्फ और सिर्फ दो चीज हम लोग चेक करेंगे. क्या है वो दो चीज, देखो. सबसे पहला चीज हम लोग चेक करेंगे कि उससे पहले हम लोग गवर्नमेंट कंपनी उसमें जाए फॉरेन कंपनी में. लेट मी एक्सप्लेन यू. हमारे पास तीन केसेस हैं यहाँ पर. बीसी लिमिटेड है जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है. 62% टोटल वोटिंग पावर जो है वो होल्ड करता है केएल प्राइवेट लिमिटेड का. क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? बिल्कुल है. ये जो बीसी लिमिटेड कंपनी है ना, ये एक गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, लेकिन स्टेट ऑफ राजस्थान 17% होल्ड करता है, स्टेट ऑफ गुजरात 13% होल्ड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट 15% होल्ड करता है. लेकिन अभी इसको ना देखते हुए हम लोग देखते हैं ना कि गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, लेकिन केएल प्राइवेट लिमिटेड का ना होल्डिंग कंपनी जरूर है. तो यहाँ पर अगर इसका टोटल वोटिंग पावर को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं तो हमारा 45% आ रहा है, विच इज लेस देन 51%. 51% से लेस आ रहा है. बट हम लोग यहाँ देख रहे हैं ना, तो दैट इज 62%. होल्डिंग सब्सिडरी का तो रिश्ता है, तो दैट इज अ सब्सिडरी कंपनी. बट क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? नहीं, ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है. अब हम लोग केस 3 देखते हैं. यहाँ पर एक बीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका हम लोग देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट 17%, स्टेट गवर्नमेंट 13% और LIC 10% और केएल प्राइवेट लिमिटेड जो है, केएल लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट कंपनी है, 12% होल्ड करती है. हम लोग क्या बोलते हैं कि जितनी भी डायरेक्टली होल्ड कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, सिर्फ उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे. बट हम लोग इग्नोर करेंगे किसको? हम लोग बाकी फालतू चीजों को इग्नोर करेंगे, यानी कि LIC और केएल प्राइवेट गवर्नमेंट लिमिटेड को हम लोग इग्नोर करेंगे. हम लोग इंक्लूड करेंगे ये 17 + 13 यानी 30%. 30% तो लेस देन 51% है. तो क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? बिल्कुल नहीं. 30% इज लेस देन 51%. अब हम लोग आते हैं फॉरेन कंपनी में. तो फॉरेन कंपनी में सिर्फ दो चीज आपको याद रखना है, दो चीज याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ दो चीज याद करना है. दो चीज क्या है कि वो जो है उसका जो बेसिकली वो ना इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, यानी उसका इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ होना चाहिए? इंडिया में. देखो सेक्शन 2 क्लॉज 42, इट मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. हम लोग बोलेंगे या तो खुद से या किसी एजेंट के द्वारा फिजिकली
मतलब मौजूद है, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली यानी मोबाइल के थ्रू है। फॉरेन कंपनी क्या होता है? एक ऐसा कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया, विच इज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। किसी भी तरीके का वो बिजनेस करता है इंडिया के अंदर। यहां पर देखोगे तो यहां पर हमारे पास आता है कि ये जो एक फॉरेन कंपनी है ना, ये रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, यानी कि द कंपनीज एक्ट 2013 में ये रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ हम लोग बोल रहे हैं प्लस, उसके साथ साथ बट हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया थ्रू इटसेल्फ और बाय हिज एजेंट फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। हम लोग बोलते हैं क्या कंपनी आउटसाइड अगर इनकॉर्पोरेटेड है और प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है तो क्या वो फॉरेन कंपनी है वो। आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है, प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, तो क्या हम उसको फॉरेन कंपनी बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। प्लेस ऑफ बिजनेस अगर इंडिया में है तो हम लोग फॉरेन कंपनी बोलेंगे। बॉडी कॉर्पोरेट का बात है तो बॉडी कॉर्पोरेट समझा दिया जाता है। बॉडी कॉर्पोरेट होता है कंपनी इंडिया का हो सकता है तो आउटसाइड इंडिया का हो सकता है, एलएलपी में इंडिया का हो सकता है तो आउटसाइड ऑफ इंडिया हो सकता है, बट नॉट अ कॉर्पोरेट सोसाइटी। कॉर्पोरेट कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होता सेक्शन 2 क्लॉज 11 में, सेक्शन 2 क्लॉज 11 में। ओके, अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स, जिसको कहते हैं सेक्शन 8 कंपनीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द फॉर्मुलेशन ऑफ एंड कंपनीज विच आर फॉर्म टू प्रमोट द charitable objects of commerce, art, science, sports, education, research, social welfare, religion, charity, protection of environment, etc. Such company intends to apply its profits in promoting its objectives and prohibiting the payment of any dividend to its members. Simple terms में अच्छा examples भी दिया हुआ है, FICCI, ASSOCHAM, National Sports Club of India, CII, etc. अब यहाँ पर इसका जो है सेक्शन 8 कंपनी का हमें दिखाया गया है क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेक्शन 8 कंपनी बनाया गया, उसका ऑब्जेक्ट है कि वुमेन हु आर एसिड अटैक सर्वाइवर्स दे आर सर्व, ठीक है। इसको बहुत सारा गवर्नमेंट डोनेशंस मिलता है, गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलता है, इसको कॉन्ट्रीब्यूशंस मिलता है, सारा कलेक्ट होकर के इसको 100 करोड़ रुपीस मिलता है। बट क्या होता है ना कि ये सिर्फ और सिर्फ 80 करोड़ ही इसमें स्पेंड कर पाता है इसके ऑब्जेक्ट को करने पे। तो क्या वो जो 20 करोड़ रुपया आया है क्या वो इसके मेंबर सेक्शन 8 कंपनीज के मेंबर्स में बांट देंगे? बिल्कुल नहीं। ये जो 20 करोड़ है उसको फिर से हम लोग इसी में यूज करेंगे इसी के कारण। अब अगर आपको अपना ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, आपको अपना ऑब्जेक्ट में एजुकेशन का ऐड करना है, लेट्स से जो हमारे जो ऑर्फन किड्स हैं उसके लिए आपको कुछ करना है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। जनरली देखो उसमें आप ऐड या चेंज कर सकते हो अंडर द ऑब्जेक्ट और पर्पस ऑफ जो है सेक्शन 8 में आप चेंज कर सकते हो। लाइसेंस आपको मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, आरओसी को पावर होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को पावर होता है, लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है इफ कंडीशंस नॉट फुलफिल्ड। आपका क्या ऑब्जेक्ट था? आपका ऑब्जेक्ट था कि यू आर गोइंग टू सर्व द वुमेन हु हैव फेस्ड एसिड अटैक, बट व्हाट यू आर डूइंग कि आप जो है स्ट्रीट डॉग्स को फूड खिला रहे हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव से बिल्कुल विपरीत काम कर रहे हो। अगर वो काम करना है तो अपने में लिख दो, अपने ऑब्जेक्ट अपने पर्पस में अपने क्लॉज में लिख दो, वो चीज़ चेंज करना है कर दो। बट इफ़ यू आर डूइंग समथिंग सेपरेट फ्रॉम देयर, अगर आप कहीं से कुछ फ्रॉड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो इस तरह का, सरप्लस इफ एनी यूज फॉर ऑब्जेक्ट्स ओनली नॉट डिविडेंड, ठीक है। इसका जो सरप्लस रहेगा ना, जैसे 20 करोड़ सिचुएशन में, तो दैट विल बी यूज्ड एज सरप्लस विल बी यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट ओनली, और डिविडेंड की तरह के नहीं यूज कर सकते हो। कॉन्ट्रीब्यूशंस ओनली फॉर द पर्पस आप यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ हमें बताया गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। company formed with any kind of charitable object like education, commerce, environment is called section 8 companies. A section 8 company can apply its profit only for promoting its objects. This company is prohibited from distributing dividend to its members. License to such company is sanctioned by the central government delegated to ROC. There is no requirement for minimum share capital as such, and it is limited company. No need to use the words limited or private limited. आप अपने नाम के पीछे में limited या private limited मत यूज करना, instead use फाउंडेशन या क्लब, ठीक है, जैसे इंडियन स्पोर्ट्स क्लब, ओके, लाइक इंडियन फाउंडेशन फॉर लाइक चिल्ड्रन वेलफेयर, इस तरीके का। सेंट्रल गवर्नमेंट में रिवोक लाइसेंस, आप लाइसेंस रिवोक कर सकते हो। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट आपका सेक्शन 8 कंपनीज का। कब? 3 केसेस में। CFP, अगर आपने CFP किया तो आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको रिटन नोटिस मिलेगा और OOBH मिलेगा। OOBH है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड,
यानी कि आपको तो एक पहले सबसे पहली बात आपको रिटन नोटिस मिलेगा कि आपने जो है अपने ऑब्जेक्ट का उल्लंघन करते हुए अपना जो काम है वो अलग तरीके से किया है, जो आपने लिखा था वो नहीं किया है और वो आप सेपरेट काम कर रहे हो ऑब्जेक्ट से, तो हम लोग आपका लाइसेंस रिवोक करने वाले हैं। आपको नोटिस मिल गया, आपको बोलने का मौका दिया जाता है, यू आर गिवन दी OOBH, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाता है, जिसको हम लोग लैटिन फ्रेज में बोलते हैं ऑडी अल्टरम पार्टम। ये देने के बाद आपको बोला जाएगा कि आपका लाइसेंस क्यों रिवोक किया गया, 3 कंडीशन से CFP के कारण। सबसे पहला तो व्हेन कंडीशन ऑफ सेक्शन 8 आर नॉट फुलफिल्ड और कॉन्ट्रावीन, अगर कॉन्ट्रावीन कर रहे हो, फुलफिल नहीं कर रहे हो तो व्हेन अफेयर्स आर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली, आप फ्रॉडुलेंटली काम कर रहे हो, फ्रॉड का काम कर रहे हो। व्हेन एक्ट्स आर प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होते हुए काम कर रहे हो तब। तो CFP के केस में आपका जो है लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। व्हेन कंडीशंस ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज आर नॉट फॉलोड और कॉन्ट्रावीन्ड। F यानी कि व्हेन अफेयर्स ऑफ द कंपनीज आर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली और व्हेन एक्ट्स आर प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू, अच्छा ये सब करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, वो करेगा CWA। CFP का ये देने के बाद वो करेगा CWA, क्या करेगा वो, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, अपना स्टेटस उसी स्टेटस में लाओ जिस स्टेटस ने आपने ये जो काम किया है वो किया है। आपने अपने ऑब्जेक्ट के विपरीत काम किया है, जाओ आप कन्वर्ट हो जाओ एक प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में, आप अपना कंपनी बंद कर दो, वाइंड अप द कंपनी, आप अमालगमेट हो जाओ विथ सिमिलर ऑब्जेक्ट की कंपनी से, टू अमालगमेट विथ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आप कर सकते हो 3 काम, टू कन्वर्ट इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, टू वाइंड अप द कंपनी, टू अमालगमेट विथ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, और पार्टनरशिप फर्म कैन बिकम इट्स मेंबर्स। ये लास्ट में एक लाइन लिखा हुआ है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इसमें। तो 3 जो है 3 केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस को रिवोक कर सकता है। CFP कंडीशंस नॉट फॉलोड, कॉन्ट्रावीन्ड, फ्रॉडुलेंटली, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में प्रेजुडिशियल काम करो, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर टू CWA क्या करेगा, कन्वर्टिंग टू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, W क्या करेगा, वाइंड अप द कंपनी, A क्या करेगा, टू अमालगमेट विद सिमिलर ऑब्जेक्ट का कंपनी, ये करेगा। उसके बाद हमारा लिखा गया है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू द लाइसेंस, ये सेम चीज है जो नोट्स में लिखा हुआ है। तो बेसिकली सेक्शन 8 अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रजिस्टर सच पर्सन्स और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एज अ कंपनी with limited liability without the addition of the words limited or private limited to its name by issuing license on such conditions as it deems fit. The registrar shall on application register such persons or association of persons as a company under this section. On registration the company shall enjoy the same privileges and obligations as a limited company. Revocation of license क्या होता है, the central government may by order revoke the license of the company where the company contravenes any of the requirements or the conditions of this sections subject to which a license is issued, or where the affairs of the company are conducted fraudulently or violation of the objectives of the company or prejudicial to public interest, and on revocation the registrar shall put limited or private limited against the company's name in the registered, but before such revocation the central government must give it a written notice of its intention to revoke the license and opportunity of being heard in the matter. तो ये जो पैराग्राफ में लिखा गया ना उसी को मैंने पॉइंट्स में बता दिया, 6 पॉइंट्स आपका। सबसे पहले तो बेसिकली 3 पॉइंट्स आपका रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस कैसे हो सकता है, आपका रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस आपका हो सकता है 3 केसेस में। कौन से केसेस में, CFP के केस में आपका रिवोकेशन हो सकता है। ऑर्डर क्या होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का ना, CWA होगा। 3 पॉइंट्स यहाँ पे होगा। वेयर अ लाइसेंस इज रिवोक्ड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट में इन द पब्लिक इंटरेस्ट ऑर्डर द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन शुड बी अमालगमेटेड विद अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स टू फॉर्म अ सिंगल कंपनी विद सच कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉपर्टीज, powers, rights, interest, authorities and privileges, and with such liabilities, duties and obligations as may be specified in the order or the company to be wound up, CWA। ठीक है, पेनल्टी और पनिशमेंट भी होता है कॉन्ट्रावेंशन पे। ठीक है, पेनल्टी क्या होता है, इफ अ कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स लेड डाउन इन द सेक्शन द कंपनी शैल विदाउट प्रिजुडिस टू एनी अदर एक्शन अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन बी पनिशेबल विद अ फाइन व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 10 लाख रुपीज बट व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 करोड़ रुपीज। ये था आपके कंपनी पर इतना पैसा लगेगा, यानी कि 10 लाख रुपया से लेकर के 1 करोड़ रुपया तक आपसे पेनल्टी लिया जाएगा। और जो कंपनी के जो डायरेक्टर हैं और सभी ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी जो डिफॉल्ट किए हैं, यानी जो गलत काम किए हैं, उनका क्या पेनल्टी है, उनका पनिशेबल है विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 रुपीज, यानी कि शुरू ही होगा आपका 25,000 रुपीज से पेनल्टी, लेकिन ये जाएगा एक्सटेंड करेगा 25 लाख रुपीज। सबसे पहली बात तो
10 लाख रुपीज़ से 1 करोड़ रुपीज़ तक जाएगा सेक्शन 8 कंपनी का जो वो करेगा तो कॉन्ट्रावेंशन होगा तो। लेकिन अगर डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स जो डिफ़ॉल्ट किए हैं वो अगर करते हैं कुछ फ्रॉड काम, अगर मतलब डिफ़ॉल्ट पाए जाते हैं तो उन पर लगेगा 25,000 से 25 लाख तक का जुर्माना। तो ये बढ़ भी सकता है बट इट विल नॉट एक्सटेंड 20 लाख for 25 lakh rupees, provided that when it is proved that the affairs of the company were conducted fraudulently, every officer in default shall be liable for action under section 44। अगर प्रूव हो जाता है ये कि कंपनी का जितना भी अफेयर्स ऑफ द कंपनी है जो कंडक्ट किया गया था फ्रॉडुलेंटली, वो हर ऑफिसर जो डिफॉल्ट किया है वो लायबल होगा अंडर सेक्शन 447। फ्रॉड करोगे तो सेक्शन 447 के अंदर पेनल्टी मिलेगा। पेनल्टी क्या लगेगा? कंपनी सेक्शन 8 कंपनीज पे 10 लाख से शुरू होकर के जो है वो 10 करोड़ तक जाएगा, 10 लाख से 10 करोड़ तक जाएगा, 10 लाख से 1 करोड़ तक जाएगा, 10 लाख से 1 करोड़ तक जाएगा, 10 लाख रुपीज विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़ रुपीज। एंड डायरेक्टर्स और एवरी ऑफिसर जो है डिफॉल्ट पाए गए हैं 25,000 से 25 लाख जाएगा। तो 10 लाख से 1 करोड़ जाएगा कंपनी पे। डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स हुवर इन डिफॉल्ट उन पर 25,000 से लेकर के 25,000 रुपीज़ से लेकर के 25 लाख्स तक जाएगा, लाख्स रुपीज़। और अगर ये प्रूव हो जाता है कि आपके जो कंपनी ने कंडक्ट किया है अपना अफेयर्स फ्रॉडुलेंटली, एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल अंडर सेक्शन 447। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? फॉर्म्ड for the promotion of commerce, arts, science, religion, charity, protection of environment, sports, etc. Requirement of minimum share capital does not apply. Uses its profits for the promotion of the objects for which it was formed. Does not declare dividends to members. Operates under a special license from central government. Need not use the word private limited या तो limited in its name and adopt a more suitable name such as club, chambers of commerce, etc. License revoked if conditions contravened. On revocation, central government may direct it to CWA. CWA converts its status and change its name, wind up, amalgamate with another company having similar object, can call its, देखो सेक्शन 8 कंपनी के पास ना ये प्रिविलेज होता है कि कैन कॉल इट्स जनरल मीटिंग बाय गिविंग अ क्लियर 14 डेज नोटिस इंस्टेड ऑफ 21 डेज। नॉर्मली कंपनीज को जनरल मीटिंग बुलाने के लिए 21 डेज का नोटिस दिया जाता है, बट ये जो सेक्शन 8 कंपनीज है ना ये 14 डेज पहले भी नोटिस दे करके अपना जनरल मीटिंग बुलवा सकती है। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डज नॉट अप्लाई। आपका जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो कि हमारा प्राइवेट कंपनी में 2 से 15 होता है और पब्लिक कंपनी में 3 से 15 होता है, वो चीज इसमें नहीं है। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का भी इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि मतलब मिनिमम वाला। ओके, नीड टू कॉन्स्टिट्यूट नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी एंड शेयर होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी। नीड नॉट लिखा हुआ है, इसको जरूरी नहीं है कि ये नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी बनाए या तो शेयर होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी बनाए। अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी अ मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज। बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि पार्टनरशिप फर्म अगर मेंबर बनेगा सेक्शन 8 कंपनी में तो क्या वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगा? बिल्कुल नहीं। डिविडेंड डिक्लेयर करना तो इसके वो कह सकते हैं इसको तो आर्टिकल्स में ही नहीं लिखा हुआ है, तो वो कैसे डिक्लेयर करेगा? लेकिन अगर अपना जो है रिलेशनशिप के लिए वो अगर ज्वाइन कर रहा है फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, देन ही कैन, यानी कि पार्टनरशिप जो है पार्टनरशिप फर्म कैन बी अ मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज। हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन का। टू प्रमोट चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट्स टू प्रमोट इट्स ऑब्जेक्टिव्स, नो पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। टाइप ऑफ कंपनी हमारा लिमिटेड कंपनी विदाउट द एडिशन ऑफ द वर्ड्स लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। हाउ स्टेटस इज ग्रांटेड, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ग्रांट इन सच स्टेटस। हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डेलीगेटेड द पावर टू ग्रांट लाइसेंस टू आरओसी। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट revoke license if conditions of section 8 are contravened or affairs of the company are conducted fraudulently or prejudicial to public interest। हमने बोला कि इसमें CFP से होगा आपका जो है रिवोक। CFP क्या होगा? अगर कॉन्ट्रावीन करते हो कंडीशन को, या तो कंडीशन नहीं फॉलो करते हो, या तो फ्रॉडुलेंट काम करते हो, या फिर एक्ट प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट काम करते हो, तो CFP हो गया। इफेक्ट क्या होगा लाइसेंस का? इफेक्ट होगा हमारा डायरेक्ट क्या करेगा? CWA करेगा, बट हमारा इफेक्ट ऑफ रेवोकेशन होगा कंपनी हैज टू यूज द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद डॉर्मेंट कंपनी आता है सेक्शन 455, वी हैव सेक्शन 455। उसके बाद आता है निधि कंपनी सेक्शन 406 क्लॉज 1। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आता है PFI। उसके बाद मोड ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड कॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी आता है। प्रोमोटर्स हम लोग बोलते हैं, प्रोमोटर्स जो है ना सेक्शन 2 क्लॉज 69 में आता है। सेक्शन 2 क्लॉज 69 क्यों? क्योंकि सेक्शन 2 क्लॉज 68 हमारा प्राइवेट कंपनी का है, सेक्शन 2 क्लॉज 71 हमारा पब्लिक कंपनी का है, सेक्शन 2 क्लॉज 72 हमारा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है। तो प्रोमोटर ना बीच में बैठा हुआ है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के, सोच रहा है कि वो प्राइवेट कंपनी बनाए या पब्लिक कंपनी, इसलिए सेक्शन 2 क्लॉज 69 इसलिए है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल है, शेयर्स है एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद डॉक्ट्रिन्स आते हैं विच वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस। थैंक यू सो मच।